सर तेरी गलियां सर. That's just a small tribute to एक villain which पहली बार सिद्धार्थ रितेश और मैं एक साथ एक फिल्म में आए thanks to Mohit and that it was एक villain and Galia was an iconic part of it. Right. So it's just a tribute from us to that memory. That's why it's part. Ritesh's character in the film जो किरदार है वो बहुत ही कमीना है. तो वो ऐसे कुछ कमीने गाने गाता रहता है फिल्म में. So this is one of those songs. The Kaminapan goes on from there to Yeah. this place, right? Bhushan sir, this one's for you. There was a time जब producer साहब एक film कर रहे होते थे, actors 3 shifts में काम कर रहे होते थे. Now it's the other way round. Like आप 3 पिक्चरों में काम कर रहे होते हैं, actor एक shift. What is this, sir? Please tell us. See, we have means partners like Nikhil and Milap and everybody, and they take care of this creative things from us. So it's always means if you have team working for you and working with you as partners, so you can definitely do multiple projects. So yes, we are doing multiple projects, but we have great partners to work with. So that's the reason. नहीं सर, और हमें भी मजा आ रहा है. Like everybody is loving it. Monisha ma'am, this one's for you. 2 directors हैं, एक निखिल सर, एक इधर जवेरी सर. What do you have to say? कौन ज़्यादा अच्छा director है? My God. एक है मेरा माइलो, हाँ. एक है मेरा नाइलो. ये जो है ये मुझे रुलाता है, ये मुझे हंसाता है, और भूषण जो है वो भी मेरा छोटा भाई है, वो मुझे पैसे देता है. बड़े अच्छे से पैसे वाली बात में चमक देखनी चाहिए थी. और निखिल सर, प्लीज टेल अस, लास्ट टाइम व्हेन वी वर हियर वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ब्लॉकबस्टर जो हो गई ब्लॉकबस्टर और इतने सारा अक्लेम मिला, क्रिटिकल बोलो या बॉक्स ऑफिस पे. अभी व्हेन यू सी हिम डायरेक्ट, तो बीच में कितनी बार मन किया कि यार ये वाला सीक्वेंस मैं कर लेता, कुछ ऐसा कर देता? एवरी शॉट, हर शॉट, हर सीक्वेंस, हर मोमेंट, हर गाना, हर एवरी शॉट. बट मतलब मैं ये भी जानता हूँ कि जो मिलाप करता है वो तो मैं कभी कर नहीं सकता. मिलाप एंड आई फाइट एवरी मॉर्निंग to the last minute every night. Okay. They finally have to tell him, Milap, put the bloody phone down. I can't take it anymore. And he cries and I cry and we are shouting all the time. Yeah, so but the one thing I know is every time he gets something like this, Right. and if I can turn around and say that I would never make this, then I know he's got a blockbuster on his hands. It is indeed a blockbuster, ladies and gentlemen. Zordar Talia for this amazing crew. And Milap sir, I would want you to do the honors because, you know. So I would like to do the honors of calling my cast one by one on stage, because along with Bhushanji, Monisha, Nikhil, Madhu, who's not here right now, she's on holiday. They are the ones who are responsible that this film happened. I would like to, being a gentleman, start with the ladies.
बस ऐसे ही हम दीवाने हैं. ऐसे हाथ डालते हाँ फिरते पता है ऐसे ही हाँ चलते ऐसे फिरते. ही। आओ शेर Oh shit, let's shake a leg. Okay, so how was it for you? You know, your experience quickly, we'll do this. जी, बताएं. Experience was very good. Thank you so much, Milap, for all the amazing words. जो आरजू का character है, you know, when Milap told me the role, I thought it was something so refreshing and so different. I've grown up on a dose of 90s cinema, and उस type की फिल्में और इस type की dialogue बाजी आजकल नहीं देखी जाती है. So जब आरजू का character मुझे बताया गया, so I was like, why not? You know, I'll get to do something which is so elegant. You know, she has her own grace, and like he said, when he said मुकद्दर का सिकंदर रेखा, तो I was like done. And I'm so happy with you know the role, and it's I remember one thing Milap told me जो मैंने पहले भी कहा था. मेरी फिल्मों में हीरोज के भारी भरकम डायलॉग होते हैं, इस बार लड़की के हीरोइन के भारी भरकम डायलॉग्स होंगे, and that you have seen, and there are many more in the film. So thank you so much, and this entire experience of Marjava has been very, very amazing, and I'd like to thank the entire team, you know, Nikhil sir, Monisha, Bhushan sir, and Sid, Tara, everyone. It's just been great. And Milap, Ritesh. I thought everyone. I mean, everyone, the entire team, and it's been great. Thank you so much for that. Tara, this one's for you. Please tell us how was it for you? Because वो reaction आपका क्या आया था? Because all of us were like, हाँ, everything is going hunky dory, सही चल रहा है सब, and अचानक से धड़. You know, the first time I saw that, in any case, it's such an emotional and dramatic film and story. And in fact, when Milap actually narrated it to me for the first time, and I'm in any case an emotional fool, I was sobbing at the office. And when I saw the trailer, I again was sobbing. I saw it just now, I got teary-eyed. So, I mean, it's great to be able to do something and to do a film like this. It's my second film, and I feel so grateful to the whole team, to Milap, to Nikhil sir, to Monisha, to everyone. Right. Honestly, I just feel really blessed and so excited. Thank you so much. Sid, this one's for you. Please बताइए. You know, with you, सबसे पहली बात, इतने fans कहीं हम लोग को देखने को नहीं मिलते हैं. Whenever it's your launch, पता नहीं कैसे, मतलब क्या है वो? हाँ? कहाँ पे? See? It's awesomeness. See? They're like baby. Big kiss to all of them. हाय मैं मर जाऊँ, इनको देख के लगता है मुझे हाय मैं मर जाऊँ. Right. फिलहाल हम मर गए हैं acting से, action से. So please tell us about this. ये कैसे, ये कहाँ से शुरुआत हुई और क्या हुआ? Thank you guys. Well, ये picture I think you know Milap believes in the cinema that we all grew up watching. कि एक हीरो की तरह चाहे एंट्री मारे या हीरो की तरह एक्शन करे या उसकी डायलॉग बाजी हो. So I personally grew up on cinema like this, and I think मुझे पहली बार I think इतने सालों में मौका मिला है ऐसा हीरो प्ले करने का. तो मैंने जब नरेशन सुना और मिलाप जी की नरेशन सुने, इनकी डायलॉग सुने, तो that was the first thing that I got very excited कि यार करना चाहिए. I got inspired to become a hero, watching big action heroes, you know, saying dialogues, you know, doing action, hopefully somewhat like this. And this is what it is. I think this is the first time in my career I'm playing a hero and being presented like one, all thanks to Milap and the whole team here on stage. So I'm pretty excited about Marjava on 8th of November, guys. And with my partner in crime, Ritesh, who's slightly shorter this time, but equally powerful and double dose. So we're super excited to present to you this film on 8th of November, guys. Marjava. Well, सबसे फिल्मी डायरेक्टर का सबसे फिल्मी हीरो और अब सबसे फिल्मी विलन की बात करते हैं. रितेश भाई, मतलब एवरीबॉडी, यू नो, इंडस्ट्री में कोई भी हो आपकी अच्छाई की बात करता है. ये वाला कहाँ छुपा के रखा था, ये जो कूट कूट के भरा हुआ है आपके अंदर? ये सिर्फ मेरे सामने आता है वैसे, है ना? ये साइड. हाँ, दूसरी बार है. नहीं, बिल्कुल. मुझे लगता है कि जब भी मिलाप सिद्धार्थ के लिए रोल लिखता है तो उसको लगता है उसके ऑपोजिट कोई कमी ना होना चाहिए. और सिद्धार्थ और मिलाप को पता है कि उसके जिंदगी में मुझसे बड़ा कमी ना कोई है नहीं. राइट. अब हमको पता लग गया ये क्यों ऐसी कास्टिंग की गई. एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर से हमारी इस कमाल की कास्ट के लिए. एंड नाउ इट्स ओवर टू ऑल यू वंडरफुल पीपल. जी, आप लोगों के सवाल जवाब लेंगे हम. Okay.
First of all, congratulations to the team Marjama. This is Simran Singh here from First Post. मेरा सवाल रितेश जी और मिलाप आपसे है. Before Sadak, we never knew that a kinner can be so dangerous, and similarly, when it comes to vertically challenged people, we never knew that it can be so menacing. So, what was your thoughts behind writing this character, and what was your reaction, Ritesh sir, when you heard the script for the first time? Well, I had written the dialogues for Ek Villain, where Ritesh had played the villain. And I knew if I have to approach him again for a negative role, it has to be something bigger than that. So then bigger तो नहीं मिला, लेकिन उससे छोटा कुछ मिल गया, thought. So my whole character, the idea was that even though he's short in height, says he's got the arrogance and the persona of someone larger than life. You know, he's got a vicious, wicked sense of humor, and he's not physically strong, but mentally he's a mastermind. He's a criminal. He's very, very powerful. So that's why I thought of Ritesh, because I think Ritesh is an extraordinary actor. He has a great sense of comic timing, everybody knows, but he's a great actor in drama too, like Ek Villain proved. So this role was a mix of the two things. There was humor, but same time there was menace. So that's why I went to him, approached him, and luckily he agreed to do it. Ritesh sir, what was your reaction? No, first of all, when Milap narrated the film to me, it's an interesting story. And वो क्या कि ये फिल्म है, ये रोल है, ऐसा इंटरेस्टिंग विलन नया है, मैं करना चाहूँगा. और तब डायरेक्टर कोई और था. और वो सिलसिला चलता रहा. ये अब शूटिंग है, तब शूटिंग है. फिर एक माइनर चेंज है उसमें. मतलब क्या है, अब डायरेक्टर मैं हूँ. मुझे बहुत बुरी तरह तूने फंसाया, लेकिन मुझे रोल इतना पसंद है कि मैं फिल्म करने को तैयार हूँ. बट मुझे ये भी लगता है कि ये फिल्म मिलाप से बेहतर कोई नहीं डायरेक्ट कर पाता. दूसरी बात ये है कि जैसे मिलाप ने कहा कि वर्टिकली चैलेंज जब कोई इंसान होता है, देन देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज दैट दे हैव टू डील विद. पर इसका किरदार ऐसा है कि जब आप फिल्म देखो तो आपको पता चलेगा उसके सारे जो भी इनसिक्योरिटीज़ है उससे ऊपर उठकर इसे लगता ही नहीं कि ये 3 फुट का है. ये जब चलता है उसे लगता है कि सामने वाले सब इसके सामने 3 फुट के हैं. तो दैट्स हिज एटीट्यूड एंड एरोगेंस. और उसके वजह से उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है, क्रूअल्टी है, वो आप जब फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा. बट येस, आई लव द फैक्ट दैट he didn't bother कि वो उसकी हाइट कम है, वो उसका एक एरोगेंस है, उसका एक स्वैग है, और मिलाप ज़वेरी के डायलॉग्स है, वो काफ़ी है फिल्म करने के लिए. निखिल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के ज़माने जहाँ प्रोफेशनलिज्म की हम बात करते हैं, what do you want to say about this gesture जहाँ पे John Abraham has just given the dates of 8 November and he has pushed his film Pagalpanti. What do you want to say about it? Well, I think that, I think the partnership that John, myself, Bhushan ji, MA, JA and T-Series, as well as, we have to be very grateful for Milap. If Milap was not here, we would not have Satyamev Jayate, we would not have Batla House, and now Satyamev Jayate too. So I think that, when Milap went and showed him the trailer, he said that it was fantastic. I think he spoke to everybody. He said it's great. And he said, but why are you feeling so upset? And he said, no, I'm not coming on I'm not solo release. So he said, le solo release. What can I do? So he called, I think it's a great gesture. It's very, and more, I think that the industry is figuring, is understanding that we are working now more and more as a unit, which I'm very happy for. It's been 25 years in the industry. I've been very happy that suddenly everybody is figuring out that, listen, Fridays we are giving hits and we are giving blockbusters. If we all come together and work together, the industry can become only prosper. So it's fantastic. We are very grateful for that. And I think, thank you for asking that question. I just want to thank John. John, thank you so much for showing grace towards us. Thank you. Thank you, John. Thank you, John. रितेश जी एंड सिद्धार्थ जी, आपके लेफ्ट में ये जानना चाहेंगे कि मरने के बाद दोबारा जन्म लेने में कितना बिलीव करते हैं आप लोग? एंड भूषण जी, आप भी बता सकते हैं. सर, मैं रितेश हूँ और इस सवाल का जवाब मैं आपको कल दूंगा. हाँ, actually that's कोई खास वजह? कल मैं मर के दोबारा जन्म ले रहा हूँ 600 साल बाद. सिद्धार्थ जी, पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं? हाँ जी. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. आई थिंक डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग चेन. मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में समझ नहीं आ रहा है. वैसे मरजामा में ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे हम. जैसा कि हम कहा है, हम कल देखेंगे इनका जादू कि ये कैसे जन्म लेके वापस आते हैं. भूषण जी, आप हाउसफुल में आप भी बिलीव करते हैं पुनर्जन्म में? कब रिलीज हो रही है? कल हाउसफुल का ट्रेलर लॉन्च है, उसमें वो रितेश उसकी जिक्र कर रहे हैं एक्चुअली.
तो उसमें आपको मालूम सर, चला। आज इस जन्म की बात करते हैं। आज का जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आज हम आज के जन्म की बात करते हैं। रितेश, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह का किरदार आप निभा रहे हैं वो वाकई बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। ट्रेलर बहुत इंप्रेसिव है, हालांकि 90 के दशक की याद दिलाता है और कहीं जहन में कमल हसन साहब भी आते हैं जब आप घुटनों के बल चल के आए। इट रिमाइंड मी ऑफ कमल हसन साहब, ही हैव डन अप्पू राजा। क्या कुछ इंस्पायर भी हुए हैं आप या आपने कुछ रेफरेंसेस लिए हैं? स्पेशली मैं कमल हसन साहब की बात करूंगा, जिस तरह उस वक्त में, जिस वक्त टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, उस वक्त वो किरदार निभाया गया था। और मिलन ने भी कहा कि आप कहीं बोलते थे कि यार ये क्या करवा रहा है भाई, लेकिन ही बिलीव इन द कैरेक्टर। तो क्या रेफरेंसेस लिए हैं आपने, और इट इज योर होमवर्क, यू नो? तो सबसे पहले मुझे लगता है कि कमल हसन साहब इज बियॉन्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हो या ना हो, हिज परफॉर्मेंस, हिज ग्रेटनेस इज बियॉन्ड ऑल दैट। और इट्स जब हम ये कर रहे थे, ऑफ कोर्स यू नो, इतने सारे एक्टर्स हैं जिनको देखकर लगता है कि इन्होंने कैसा किया होगा, पर फॉर्चुनेटली यू नो मुझ में जो खामियां हैं एज एन एक्टर, वहाँ टेक्नोलॉजी आकर हेल्प कर देती है। एंड आई एम ग्लैड जिस तरह मिलाप ने इसको यू नो लिखा गया है, डायरेक्ट किया है, और इसके जो VFX है वाकई फ्यूचर स्टूडियोज़ हो या इसको जिस तरह डिज़ाइन किया गया है, आई थिंक दे हैव रियली टेकन ग्रेट केयर एंड मेड इट एक्सट्रीमली ईजी फॉर मी एज एन एक्टर। मुझे सिर्फ एक शॉट 5 बार करना पड़ता था, उससे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई है। और हमें शॉट बिना इनके करना पड़ता था, इमेजिन करते करते कि यहाँ पे इस आई लाइन में है, और जब कभी कभी एक्चुअल आई लाइन देखनी होती थी जब ये खड़े हुए हैं, यू नो ये हम लोग ऐसे शूट करते थे। नहीं सर, तो जब आप खड़े होते हैं और मेरी आई लाइन क्या होती है? अरे सर नहीं, मैं मारूंगा मर जाएगा। हाँ, तो ये कैसा लगता है? देखो, और मेरी आईलाइन क्या थी? कमीनेपन की हाइट तो जानता नहीं है। हेलो। तो ऐसे तो हमने परफॉर्म किए पिक्चर में, देखो इतनी भारी भरकम लाइनें कहाँ देख के बोल रहा था मैं। कोई शूटिंग देखने आया था, वो डर गए थे कि ये कैसी पिक्चर है। आई एम रिमाइंडेड ऑफ मिलाप्स अर्लियर फिल्म, प्लीज स्टॉप इट बोथ ऑफ यू ऑल। तारा हियर, फिल्म में बहुत सारे लोग बहुत सारे डायलॉग्स बोल रहे हैं, आप कम डायलॉग्स बोल रहे हो, तो इन द फिल्म डू वी गेट टू सी यू हैविंग भारी भरकम डायलॉग्स? That's a great question, ma'am. So what really drew me to Marjava and to Zoya's character is the fact that she's actually mute. So in the film, I actually learned sign language for a couple of months before the film, and I feel really lucky to have been able to learn something as universal as that. It helped me so much in the film, and I got so excited that I got to do something like that. It's something I'm actually going to use in my life wherever I travel and go to. But in the film, she communicates in sign language, and I think that's wonderful communication between her character and Raghu's character. I think that's what makes them fall in love, and it's beautiful. So I can't wait for everyone to watch it. Hello. This is Sakshi from E24. मेरा सवाल सिद्धार्थ से है। थोड़े टाइम पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि आप शायद अभी कोई और नई फिल्म साइन नहीं करेंगे, एंड यू विल एनालाइज, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं, मैंने यहाँ पे कुछ भी एनालाइज नहीं किया इनके साथ। मैं सीधा कूद गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर कोई एक्टर सोचता है एक पिक्चर साइन करने से पहले कि उसको उस पिक्चर में क्या पसंद आता है, उसको उस पिक्चर से क्या चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस फिल्म में it gives an oath to all the heroes that I have seen you know in Hindi movies, and I got inspired कि क्या शॉट है, क्या एंट्री है, क्या वॉक है, क्या एक्शन है। तो वही एक्साइटमेंट से मैं इस पिक्चर में घुसा मिलाप के साथ, इस डायलॉग्स के साथ, एंड दिस टीम हियर हैज़ मेड श्योर दैट आई हैव बीन प्रेजेंटेड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। मेरा पहला एसोसिएशन है भूषण सर के साथ, MA के साथ, एंड आई हैव हैड अ वंडरफुल टाइम विद दिस होल टीम, and we're hoping, we're very excited that this is not the end, and we'll have many more films. Hello, this is Surya here from Bollywood Crazies. My question to Milap sir is that सर ट्रेलर तो पैसा वसूल है, पहली बात। तो दूसरी बात, यहाँ पे एक सीन था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे रितेश सर एक कुर्सी फेंकते हैं और सामने आईने पे 10 चेहरे दिखते हैं। दैट वाज ए ब्रिलियंट पीस ऑफ सिनेमा मेकिंग, आई मीन। सो या सर, ये सुनने के लिए मिलाप के कान तरस गए थे। उसके जिंदगी में किसी ने इसको नहीं कहा कि ब्रिलियंट पीस ऑफ सिनेमा मेकिंग। सर ये सुन के निकल गिर गया इसको। Especially in front of me. मैं टर्न करके जा रहा हूँ घर। या
there is also a dialogue called कमीनेपन की हद 3 फुट. तो ये सब चीजें, ये सब डायलॉग बाजी इतनी कमाल की लगती है, मतलब एक पैसा वसूल सिनेमा लग रहा है फिलहाल मुझे. और यहाँ पे मेरा बर्थडे भी आता है 8 नवंबर को, तो मैं तो देखने वाला हूँ फिल्म. लेकिन आप लोग से सवाल, कल नहीं बाबा, 8 नवंबर को. तो मेरा ये सवाल है मिलाप सर से, इस तरह का जो सिनेमा है, जो मसाला सिनेमा है, जो बच्चों से लेकर बूढ़े तक को पसंद आएगा, कितना डिफिकल्ट होता है बनाने में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपको इतना अच्छा लगा वो सीन कि मुझे क्या है, दोबारा पूछना सवाल. तारीफ की आदत नहीं है, बिकॉज सबकी शिकायत होती है कि मेरा जो सिनेमा है वो बहुत ज्यादा मासी है और मसाला है और फिल्मी है. तो आई एम वेरी हैप्पी, आपको बहुत अच्छा, वो बहुत ही एवरीथिंग लुकिंग दैट साइड, नॉट दिस साइड. बट आपने जो बात कही है ऑनेस्टली, ये बात मुझे निखिल ने भी कुछ दिन पहले कही कि ये जो एक सेक्शन जो तूने आईना तोड़ के जो 10 रितेश के सर नजर आते एज अ सिंबोलिज्म ऑफ रावण, तो ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दैट्स वन ऑफ द ओनली एस्थेटिक शॉट्स यू हैव टेकन इन दिस होल फिल्म. एंड देन आई सेड वन मोर थिंग. व्हाट? क्लोज अप क्यों नहीं लिया? और उस सीन की खास बात थी कि मैं शॉट देने जा रहा था, मैं वहाँ रुका था और मैं कैमरा के सामने आया, कैमरा रोल हुआ और मिलाप ने कहा कट, दौड़ के आया, मेरे पास एक लाइन आई है, लाइन बोल दो. मतलब कौन सी? मतलब लाइन बोल दे. आप बोलो. तो बोलता है कि एक रावण 10 सर, एक विष्णु 10 का सर. हेलो हेलो, मेरा नाम आरती सक्सेना है. यहाँ पे आरती जी, मेरा रितेश जी से मेरा सवाल है जी मैम, कि मतलब ये करेक्टर, ये हम लोग जब आए ना तो हम लोग लगा मर जावा, मतलब होगी एक पिक्चर, लेकिन जब हम लोगों ने देखा हाँ सही है, पिक्चर ही है, सही बोला आपने, एक पिक्चर ही है. एक हम लोग जैसे हमेशा एक ट्रेलर लॉन्च में आते हैं तो हम लोग ऐसा नॉर्मली आते हैं, लेकिन देखने के बाद हम लोग झटके में आ गए. थैंक यू. जो इन्होंने लास्ट में गोली चलाई, आपके जो शॉट्स थे, तो मुझे ये पूछना था कि मतलब आपका जो विलन वाला रोल है, इसके लिए आप गाना गा रहे थे कि ये घड़ी आ गई, इतना अच्छा रोल मुझे मिल गया इतने टाइम के बाद, मतलब लाइक इसमें बहुत अच्छा आपका रोल है. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मिलाप का और मेरा एसोसिएशन काफ़ी सालों से है. हाँ. मेरे करियर में जब भी कोई बदलाव हुआ है तो मिलाप की लिखावट से हुआ है. पहले चाहे वो मेरी पहली कमर्शियल हिट फिल्म मस्ती थी जो मिलाप ने लिखी थी. जिंदगी में हमेशा ये सोचता था कि कभी तो विलन बनूं, एक रोल होता है, हर एक्टर की ख्वाहिश होती है. वो एक विलन में मिलाप ने लिखा था. और उसके बाद अभी वर्टिकली चैलेंज बनने का भी मौका बहुत कम लोगों के नसीब में आता है. मुझे मिला है. सो आई वांट टू थैंक मिलाप फॉर दैट. और लगे हाथों मैं ये भी कहना चाहूँगा, इट वाज ग्रेट एसोसिएटिंग विथ एमए, मोनिशा, मधु एंड निखिल. दे हैव बीन great producers. इतने साल काम करने के बाद then you work with a new team, you feel re-energized, so that's there. And it's my first association as producer with Bhushan ji, and he has been a fantastic producer, and I wish him and all his endeavors all the best and much success. हेलो, मुझे बोलना था कि आपका जो रोल है ना, एक यादगार रोल हो सकता है इन फ्यूचर. लाइक आपको कोई विलन ध्यान में है जिसको देख के आपको लगा कि ऐसा मैं भी बन जाऊंगा? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मेरी वैसी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं उनकी तरह बनूं, क्योंकि जो भी मुझे विलन्स अच्छे लगे, दे हैव बीन फैंटास्टिक, दे हैव बीन ग्रेट. और आई एम नॉट दैट कैलिबर फॉर एन एक्टर टू रीच देयर, बट विद इन माई स्पेस इफ आई कैन क्रिएट समथिंग दैट पीपल से अरे इसने अच्छा काम किया है, मेरे लिए वही काफ़ी है. Hello, hi. This is Siddhi from Deccan Chronicle. Firstly, the trailer looks really amazing. My question is for you, Siddharth and Ritesh. After watching the trailer, I could really feel that I'm reminded of the characters Ram and Ravan. So, is Marjawa a contemporary take on Indian mythology? सवाल हमसे पूछा लेकिन जवाब सिर्फ मिलाप ही दे सकते हैं. हाँ बिल्कुल. ये रघु और opinion. विष्णु के बीच. Yes, because आप लोग कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे, so is it actually a take on Indian mythology? Like even after seeing the Well, if you talk about two different extremes, definitely there is a take on one being skewed to slightly positive, one being skewed to a slightly more negative character. But ये सब आप रेफरेंस की बात कर रहे हैं, I think क्योंकि रावण है यहाँ पे और वो उन्होंने जो लिखा है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है पिक्चर में, रावण को लेकर एक जो कल्चर है, एक प्रथा है जो होती है, उनकी भारी भरकम डायलॉग्स भी हैं उसके ऊपर. तो आई थिंक मोर देन अस सेइंग
anything else about the film, I think it will speak for itself. पर बाकी ये बताएंगे कि आपने आप रामायण से इंस्पायर हुए? Well, मेरा मानना है हर किसी की जिंदगी में कोई राम है, कोई रावण है. There is good and evil in everyone. So in this film, that is a subtext of good versus evil. Raghu, his name in the film actually is one of the names of Lord Ram. So it has happened organically. It's not a mythological tale. The film is not that. The film is not a mythological tale. It is a masala entertainer. But yes, there is this subtext of good or evil. Dasera plays an important part in the film. Ravan plays an important part in the film. So, no, I just want to, agree to what Milap and Siddharth just said. Just the fact that, it's about a man fighting for his love and going all out. And that's what even Lord Ram did, and that's what Raghu is doing. And सर, मैंने बच्चन साहब की सारी फिल्में देखी है और कई बार देखी है, आज भी देखता हूँ, बार बार देखता हूँ. और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यस, जब मैंने पहली बार, बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं हमारे जो इकट्ठा नहीं हैं, जो अलग सिद्धार्थ के साथ शूट, अलग मेरे साथ शूट हुए हैं. बहुत सारे सीन्स जो हमने एक साथ किए हैं, पर जब मैंने उनके पोर्शंस देखे तो जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, जो डायलॉग डिलीवरी थी, आई मीन आई जस्ट फेल्ट कि जो 80s या 70s में अमित जी की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे काफ़ी मिलती जुलती इनकी है. इनका डीप बैरिटोन है, वो एटीट्यूड है. तो आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दैट इज़ देयर एज एन ऑडियंस. So sweet, thank you. हाँ जी सर. आपका सवाल क्या था? ओह अच्छा, नहीं वो आई थिंक जब एक डायरेक्टर की तरफ से वो सोच आती कि वो ऐसे किरदार को देख के इंस्पायर हुए हैं. मैं भी वही बात कर रहा था कि मैं बच्चन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, चाहे वो बाकी एक्शन हीरोज़ हो 90s के, जहाँ पे मैं पला बड़ा था. तो हम सब के जहन में वो होते हैं कैरेक्टर, जब हम चाहे परफॉर्म कर रहे हो या लिख रहे हो या डायरेक्ट कर रहे हो. तो आई फील एक अच्छी बात है, बट हमारा ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है कि किसी और कैरेक्टर को एमुलेट करें. बट डेफिनेटली वो जोन, लाइक वी हैव ग्रोन अप ऑन हीरोज लाइक हिम, एंड आज भी वो एक रेफरेंस है, चाहे हीरोज का एक्शन हो, उनका एक एटीट्यूड हो, एक स्टाइल हो. तो आई थिंक वो रेफरेंस अगर आपको उसमें दिख रहा है, हम बहुत ही एक्साइटेड हैं. बट होपफुली पीपल फील द सेम ऑन 8 नवंबर. हेलो भूषण सर. डेडिकेट खैर मैं आई डोंट थिंक उस मुकाम पे हूँ या कि मैं डेडिकेट कर सकूँ या कुछ भी. बट अगर किसी को भी लगे कि वो थोड़ा 1% भी आसपास है, सो दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी. बट जैसे कि मैंने कहा, जब मिलाप ने मुझे बताया तो आई थॉट कि ऐसा किरदार मुझे दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज ऐसा लिखा नहीं जा रहा है आजकल, वेर यू कैन प्ले दैट 90s ग्रेस और ये सब. और मैंने फिर जाकर वापस मूवी देखी जस्ट टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड. 2-3 फिल्मों की रेफरेंस दी थी मिलाप ने मुझे, बट I'm just happy that I got to play it. Hello, Rahul. We'll take 2 last questions, right? Like your center. Rahul here from the Filmy Charcha. मेरा सवाल चारों स्टार कास्ट से पहले सिद्धार्थ से शुरू करते हैं. ट्रेलर बहुत ही अच्छा है और इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये आपकी सारी फिल्मों सबसे टॉप पे ये बेस्ट फिल्म बन जाएगी आपकी. तो बात करते हैं, जब मर जावा फीलिंग तभी आती है जब कोई सिचुएशन होता है, ऐसा कुछ नौबत ऐसी आती है. एक तो सलमान सर ने किक में बताया था, मैनू यार न मिले तो मर जावा. तो आपकी नजर में आपकी कब ऐसे सिचुएशन आए थे मर जावा वाली? कि मेरा अभी हुआ, फैंस को देखता हूँ हमेशा मेरे को लगता है हाय मैं मर जावा. इन सब का प्यार ऐसा है, जिस तरफ से ये लोग आते हैं हमेशा प्यार दिखाते हैं. आप कोई भी एक्टर जब मिलता है अपने फैन से, मैं इनसे पहले भी मिला नीचे, तो यू ऑलवेज फील ब्लेस्ड. एंड जैसे हमारे नॉर्थ में बलाएं लेते हैं ऐसे, हाय मैं मर जावा, और यहाँ पे मिलाप सर ने उसको ट्विस्ट दिया है एक, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा.
बट वी आर होपिंग कि इस पिक्चर के बाद मरजावा के अलग अलग भी मीनिंग्स आएंगे जो चाहते हैं हमारे मिलाप सर. क्योंकि कुछ कमीने दोस्त भी होते, अगर सीरियसली आपको बोल दे ठीक है मर जा तो ओ ठीक है मर जा, ये क्या? अगर कुछ कमीने दोस्त भी होते, अगर आपने बोला हाय मर जावा, हाँ. तो सामने से अगर रिप्लाई करे कमीने दोस्त हाँ ठीक है मर जा, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? ये कहेंगे घर जावा. मैं मारूंगा मर जाएगा. फिर उसको ये- हेलो रितेश भूषण सर, सर, भूषण सर, दिस इज रवि रितेश सर, हेलो योर सेंटर रितेश सर. रवि सर, I'll come to you. एक सेकंड जी. रितेश सर, जैसे कि आप भी जानते हैं कि अगर कुछ सिमिलर चीजें होती, चाहे रोल हो, कैरेक्टर हो या सीन हो, तो लोग कंपैरिजन करने लगते हैं. तो कुछ लास्ट ईयर एक फिल्म आई थी जीरो, शाहरुख खान सर की फिल्म आई थी, तो वो फिल्म उतनी पसंद लोगों ने किया था, फिर भी उतनी चली नहीं थी. तो क्या कंपटीशन लगता है आपको, क्योंकि आप भी एक डॉफ का किरदार कर रहे हैं? नहीं, सबसे पहले अनफॉर्चुनेट मैंने फिल्म देखी नहीं है, पर मैं जब शाहरुख साहब के सेट पे गया था तो मैंने अराउंड 45 मिनट्स उन्होंने मुझे बैठ कर दिखाया था कि वो किस तरह शूट कर रहे हैं, किस तरह उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं. तो लाइव मैंने उनको वो परफॉर्म करते हुए देखा था एंड ही वॉज मैग्निफिसेंट. आई थॉट व्हाट दे हैड डन वाज एक्स्ट्रॉर्डनरी. और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तो उनके जैसा, उनकी तरह नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने वो कोशिश ही करना छोड़ दिया. और मेरे लिमिटेशन में मुझे जितना आता है, जितना मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा, उतना मैंने किया. अभी आप देखिए, आपको पसंद आया तो ग्रेट. रकुल, हमेशा की तरह आज भी आप बहुत बेहद खूबसूरत लग रहे हो आप. तो ये मर जावा फिल्म आपने क्या सोच के हाँ बोला, मतलब कुछ ऐसा लगा आपको क्योंकि छोटा सा किरदार है? सोचती तो हाँ नहीं बोलती. बस मिलाप ने थोड़े से डायलॉग सुना दिए और बस मैं उसमें मैंने हाँ कर दी. बट जैसा कि मैंने आपको कहा, बात लेंथ की नहीं होती, जैसे आपने कहा कि छोटा है, बात धमाके की होती है. कभी कभी छोटा भी धमाका दे जाता है. सो आई थिंक काफ़ी पावरफुल रोल है. एंड जैसा कि इन्होंने ही कहा, मुकद्दर का सिकंदर, उसमें अभी तक आप रेखा जी के रोल की बात कर रहे हैं, चंद्रमुखी, देवदास की बात कर रहे हैं. तो आई थिंक मुझे ये रोल बहुत एक्साइट किया. अगेन जैसे मैं कह रही हूँ, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टराइजेशन, बिकॉज ऑफ द वे आरजू का कैरेक्टर लिखा गया है, उसकी अदाएं, उसकी शायरी, काफ़ी शायरी में बात करती है वो. जब आप आगे देखेंगे मूवी तो आपको पता चलेगा. सो फॉर मी इट वॉज जस्ट गेटिंग अ चांस टू प्ले समथिंग विच आई डोंट थिंक आई कुड हैव गॉटन अ चांस टू प्ले otherwise. रवि सर. भूषण सर, हाय, रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़. भूषण सर, टी सीरीज इस वक्त जितनी बड़ी बड़ी फिल्में बना रहा है, बॉलीवुड में जो 2-3 स्टूडियोज हैं उससे भी कहीं बड़ी बड़ी फिल्में और बड़े बड़े सितारों के साथ काम कर रहे हैं आप. हाल ही में खबर आई थी कि वांगा रेड्डी, जो कबीर सिंह जिन्होंने बनाई थी, मॉन्स्टर हिट फिल्म थी बहुत बड़ी, रणवीर सिंह अब काम करने जा रहे हैं वांगा रेड्डी के साथ. क्या कुछ इसके बारे में कंफर्मेशन दे सकते हैं, क्या कुछ बता सकते हैं? अभी वी आर डूइंग द फिल्म, लेकिन अभी कोई एक्टर फाइनल नहीं है. ही इज स्टिल राइटिंग द स्क्रिप्ट. तो जब रेडी हो जाएगी तो विल ऑफिशियली अनाउंस इट. अप्रोच किया गया है सर उन्हें? नहीं, अभी किसी को अप्रोच नहीं किया. ओके सर. One last question we're taking. Ji. Komal here from Indian Express. Ritesh, my question is for you. Yes, you know, while you totally look into your character in the trailer that we watched, why this question can be answered by the director and Nikhil, you also. When we write characters keeping maybe a dwarf in mind, why do we not have a dwarf actor do this? Because we always lack some kind of representation when it comes to a dwarf actor or a fat actor or you know, an old actor. When these characters are like this, you know, why don't we get actors accordingly? Ma'am, I respect your viewpoint, but as an actor, when someone has approached me with a offer and a role, I think my job is only to see whether I will be able to pull it off, and if the director and the producer have the confidence whether I'll be able to pull it off and do justice to what's been offered to me. As an actor, I am ready to play anything, you know, be it a vertically challenged person, old person, young person. I have played a woman also in, so हाँ सर वो भी है. और बहुत सारे पिक्चरों में मेरी हालत कुत्ते जैसी भी हुई है. तो I have played everything. और so I'm as an actor I'm open, but as a writer and producer, I'm sure Milap will be able to answer that. Well, while I feel your question is valid, if you know, Mr. Anupam Kher, who's such a great actor, had not played a character older than his years in Saransh so many years back, you would never have had Anupam Kher ji. Similarly, there are so many great actors who play different roles. Ayushmann
in Dreamgirl few weeks back played, you know, a person who's, they all think he's a girl. So I just think that eventually, while I feel yes, everyone deserves a right and should get an opportunity, you know, to act and to perform, it's also equally fair that actors get chances to experiment. You know, for Ritesh to be able to play a dwarf, for someone else to be able to play someone older, you know, it's or someone to be like, even Sand Ki Aankh trailer came out a few days back. I loved the trailer. I think it's superb the way Taapsee and Bhumi have done their parts, and I think it's great that actors are taking challenges and coming out of their comfort zone, and you know, writers are writing, directors are agreeing, producers are agreeing to, you know, do such things. So I just guess it's a matter of who you think fits the role. I knew I needed someone like him because of the wickedness and the humor and the, you know, the performance. That's why I approached him for it. Yeah, my question is to... Gigi, please continue. Yeah, my question is to Monisha ma'am. The last two films here. Oh, sorry. The last two films you produced and now Marjava. So what are the parameters which you have in your mind before you say yes to produce a film? What goes in your mind? A good story, really. Okay. You know, I'm just going to link it to what Komalji asked right now, which is when Milap was narrating the story of Marjana to me, yes, there was, he started by telling me that the villain is vertically challenged. But after, I think, the first 15, 20 minutes of the narration, I forgot about all disabilities. I forgot that the character of Zoya is mute. I just got engrossed in the character itself. And very honestly, I couldn't see anybody besides Ritesh playing that role. And I couldn't see anybody as, you know, we needed somebody who was beautiful and pretty, and she had not yet come into the business, but we knew she should visit our office sometimes. And both Milap and I, she had come over to my house for a dinner, and I said to him, I said, this girl is so beautiful, can't she be Zoya? So very honestly, very often you get so, and as a producer, yes, we do keep commerce in mind, and I'm fortunate that I've got partners like T-Series with us who, you know, keep that element of it and allow us the freedom, Nikhil, Madhu and myself, to actually find a story where we see people we believe in, and then work very hard at ensuring that we put the film together the way we heard it and the way it comes across. Yeah? Thank you so much, ma'am. And it's time for the final photo op.